Or okay, I'll just select the. Actually, we need to select all these faces from here to here, from all the things. But I'm doing it separately so that it is easier for me to manage and manipulate. Okay, I'll just press 3. I'm modeling the face almost in smooth preview only. So we will manage it as much as little vertices as we can. We will insert vertices, but let's try with the bare minimum first. This might be a little bit confusing because of the overlap, but we need the overlap. Okay, fine. Now we'll connect our. Before that, I'll continue with this thing. That's all this. Control E, good. पीछे लेके आओ यहाँ पे भी. Okay. Go to my vertex, select the vertex, go to my target well tool and target well. इसके साथ इसका target well कर देना है. Okay. Fine. Okay. I will select my chin area. Control E and extrude it. Go to my vertex. Now this guy, the face looks very thin, but his chin is quite broad. You can see it in the reference. He's having a broad chin. It's almost like Thanos. Not that big, but okay. I will insert one edge over here. So we need that. This here is bending, and now I can pull them a little bit up. We insert more, but for the time being, let's take it this much only. Okay, it's getting pointy here, so definitely we need to move these from. Okay. Okay, looks good. All right. So next we will select our eye socket and let's just try to match it a bit. Looking at the faces, this is fine. Bring it down and I can join it here, right? That should be. I'll join this point with this one and this point with this one.
Okay. So before that, we need to combine these two objects. Most of you are having trouble while while merging vertices because you are selecting vertex over here, vertex over here. But still, this won't work because both of them are separate objects. So first of all, go to object mode, select both the objects, not in the sub-object level. Again, this is again a common mistake. You being in the sub-object level and going and applying the combine won't work. Combine only works on object level. So select both the objects. I'll get rid of this part. I don't need that. Select both the objects, mesh, combine. Then I'll go to the vertices and then I'll just merge them. Merge vertices and select this to and G. G for repeating the last command. I did not use the target well tool because the vertices were almost overlapping with each other. So target well tool, use the target well tool when you have to travel from to a certain distance from here to here, let's say. So I just use the target well tool. But if the vertices are very close to each other, it's not necessary to use the target well tool. You can just directly apply the merge tool. So you Okay. selected both the vertices and pressed एंड देन G9. मर्ज, हाँ हाँ हाँ, जहाँ पे राइट क्लिक करने से ऐसे टारगेट वर्ड मिलता है ना, वहीं पे मर्ज वर्टेक्स भी मिलता है. तो व्हेन यू अप्लाई मर्ज वर्टेक्स नो, वो दोनों वर्टेक्स का सेंटर पॉइंट में आके मर्ज करेगा. ठीक है. तो अगर मुझे चाहिए कि ये वर्टेक्स एग्जैक्टली इसी के ऊपर आके मैच हो तो मैं टारगेट वेल करूंगा. बट अगर दोनों ऑलरेडी सेम जगह में है एक दूसरे के ऊपर, देन आई कैन इजीली जस्ट मर्ज दैट. टारगेट वेल यूज करने की जरूरत नहीं है. क्योंकि टारगेट वेल यूज करने के लिए तुमको और सामने जाना पड़ेगा, देन देखना पड़ेगा किसके ऊपर किसको जाना है. Okay. Just saving some time. Sir, why do we need combine के बाद में merge? कंबाइन नहीं करोगे तो दोनों सेम ऑब्जेक्ट में नहीं होगा ना, सेम ऑब्जेक्ट में काम नहीं करेगा ना. Okay. हाँ, जब भी हम सब ऑब्जेक्ट लेवल पे काम करते हैं ना, क्योंकि ये जो इंसर्ट एज लूप टूल है, देन मर्ज वर्टिसेस है, दीज आर ऑल सब ऑब्जेक्ट लेवल टूल. जो ऑब्जेक्ट लेवल पे अप्लाई नहीं होता, सब ऑब्जेक्ट लेवल पे अप्लाई होता है. तो सब ऑब्जेक्ट लेवल पे दोनों पार्ट्स जो है वो सेम होगा तो ही दोनों में एक साथ में काम करेगा ना. ओके, लेट्स कंटिन्यू विथ अवर जॉ लाइन. यहाँ से कंट्रोल ई, एक्सट्रूड इट आउट. ओके, यहाँ तक लेके चलते हैं. इस व्यू से भी देखते रहो. ठीक है. So मैं दोनों साइड से काम करता हूँ. लाइक समटाइम्स आई विल बी लाइक आई विल जस्ट मैनेज इन माय सिंगल व्यू, लेट्स से इन माय फ्रंट व्यू और इन माय फ्रंट व्यू और लेफ्ट व्यू, एंड देन आई विल गो बैक टू माय अदर व्यूज एंड मैनेज इट. द अदर वे अराउंड इज कि ऑलरेडी जब कर रहे हो तभी दोनों साइड से मैनेज करते हुए चलो. कंट्रोल ई. दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपन माय कॉन्फिडेंस कि मैं यहाँ पे संभाल लूंगा बाद में. जब मुझे लगता है कि हाँ ये जगह इजीली संभल जाएगा, देन आई डोंट केयर, मैं एक ही व्यू में काम कर लूंगा, देन मैं दूसरे व्यू में जाके करूंगा. बट समटाइम्स यू जस्ट फील इट कि अभी अगर नहीं संभाला ना, बाद में तकलीफ होने वाला है. इट्स जस्ट काइंड ऑफ इंट्यूशन काइंड ऑफ थिंग. ओके, नेक्स्ट व्हाट वी कैन डू इज सिलेक्ट दिस स्टेज. नाउ यहाँ पे एज ए बिगिनर प्रॉब्लम ये करते हैं ना लोग, इसी को राउंड करके रख देते हैं, यहाँ से कंटिन्यू कर लेते हैं ऊपर. ठीक है, वो बहुत वियर्ड इफेक्ट आता है उसमें. एंड ऑल्सो हमारे पास एजेस बढ़ जाते हैं यहाँ पे, कॉर्नर एजेस इस एंगल में जाने के लिए. तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लेके रखा, देन ये ऊपर वाले एज से वी विल कंटिन्यू द एक्सट्रूजन. ओके, गो टू माय वर्टेक्स, ऑलमोस्ट ये को कवर कर लेते हैं. तो यहाँ पे देखो अगेन, अगर ये लाइन को देखो ना, ये दिस इज स्ट्रेट गोइंग टू द आईब्राउ लाइन, एंड यहाँ पे भी आईब्राउ के सामने ही है. बट इफ यू सी यहाँ पे ये पॉइंट ईयर को टच कर रहा है, बट यहाँ पे कोई अता पता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ पे है वो. तो वी आर नॉट गोइंग टू पुल इट एंड कीप इट लाइक दिस. ठीक है, हम इसी को फॉलो करेंगे साइड व्यू को, बिकॉज एनीवेज ईयर जब हम बनाएंगे तो साइड व्यू में ज्यादा अच्छे से दिख रहा है, तो इसलिए आई विल जस्ट फॉलो द साइड व्यू. क्लियरली वी कैन सी दैट ये पॉइंट इसके साथ मैच होने वाला है. ठीक है, तो जानबूझ के मैं यहाँ पे रख रहा हूँ. अगर ये पॉइंट कहीं पे थोड़ा ऊपर होता तो मैं थोड़ा और ऊपर रख देता उसको. ठीक है,
So you need to think ahead and then place your point. What I see. Okay, इसको सब डिवाइड करते हैं. डेफिनेटली चाहिए वहाँ पे, इतना बड़ा स्ट्रेचिंग नहीं चलेगा. आई एटलीस्ट 2 एक साथ में कर देते हैं. 2 आ गया. आई रिसेट माई टूल एंड देन आई लेट गो. ओके, इसका थोड़ा सा ना जार शेप का है, एकदम अजीब सा है थोड़ा सा. थोड़ा सा अंदर कर देते हैं. This is the kind of shape that we have. फिलहाल we are creating modeling it symmetrical, but जब हम लोग का हो जाएगा एक सेट पूरा complete and we will just duplicate special and merge the center vertices, combine the both the objects, then we can manipulate the other side to create the asymmetrical face. तो हम लोग का फेस कभी भी दोनों साइड से सिमेट्रिकल नहीं होता है. It's always asymmetrical. But for now, let's just stick with the minimum point. Okay, तो इतना तक हो गया. Alright. तो अभी मैं क्या करूँगा, इसको एक्सट्रूड करते हैं 1 2 3 4 5. ऊपर तक जाने की जरूरत नहीं है, इतना तक ही. कंट्रोल ई एंड वाई एक्सिस में टच करता हूँ. हमेशा जेड जी में नहीं जाना है, ठीक है. डिपेंड करता है कौन सी डायरेक्शन में दे रहा है वो तुमको, ठीक है. ओके, वाई में ड्रैग करते हैं, ऑटोमेटिकली मैच होता जाएगा फेस का जो अप्स एंड डाउन्स है उसके साथ. Select all these faces. I can scale them थोड़ा सा छोटा करने के लिए. रोटेट भी कर सकते हैं एंगल मेंटेन करने के लिए. Okay. I'll get rid of this face. इसकी हमें I don't think हमें जरूरत है. और what we can do is मैं इस पॉइंट को इसके साथ लगा सकता हूँ कनेक्टिविटी. एंड यहाँ पे अगर एक और एज कंटिन्यू कर दूं तो इसके साथ कनेक्शन आ जाएगा इसका. राइट, लेट्स ट्राई दैट. We'll go to insert edge loop tool, move. I did reset the tool. Reset. Okay, let's try. Target 12 and target 12. इन दोनों को target 12 कर देता हूँ. And यहाँ पे what I can do is can come to my append poly tool and यहाँ पे join कर देते हैं append poly. See, we have connected the part. अब क्योंकि हमारे पास ये एज आ गया है, we can just manipulate the shape, a little bit, define the part, space them out. Okay. Okay, press 3. Seems fine. There are no dents or whatsoever. इसको हम थोड़ा सा अंदर ले सकते हैं. पुश करो अंदर. ओके, ठीक है. Then I'll come here. इन तीनों को एक्सट्रूड करते हैं, थोड़ा और सामने लेके आते बिकॉज ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है. कंट्रोल ई, मूव टूल, मूव करो, चले के आते हैं. डेफिनेटली यहाँ पे एक कट चाहिए, तो I'll just go to my insert edge loop tool and एक कट यहाँ पे लगाते हैं. वर्टेक्स सेलेक्ट किया, मर्ज वर्टिसेस, इसको स्ट्रेट ही रखते हैं.
तो ये many edge loops over here, but यहाँ पे हमारे पास काफी कम है, तो डेफिनेटली हमें इंसर्ट करना पड़ेगा, बट जैसे जैसे सामने जाते जाएंगे वैसे वैसे मैनेज करते जाएंगे। ओके, नाउ इस व्यू से देखो पूरा फ्लैट लग रहा है देखने में, तो यहाँ से भी हमें मैनेज करना है। लेफ्ट हैंड ट्रैक, ट्राई टू मेंटेन द कर्वेचर ऑफ द फेस। अभी उसके चिक बोन्स को इतना ध्यान नहीं देते हैं, वो बाद में मेंटेन कर लेंगे। फर्स्ट लेट्स जस्ट गेट द शेप राइट। ये यहाँ पे कनेक्ट हो सकता है, या तो फिर यहाँ पे कनेक्ट करो, यहाँ पे एक नया एज लगा दूंगा, तो ये चला जाएगा इसके साथ, ठीक है। दिस थिंग्स यू हैव टू डिसाइड एज यू गो ऑन, ठीक है। आई स्टिल थिंक कि मैं इसके साथ कनेक्ट करूंगा ताकि ये यहाँ पे कहीं पे जा सके, ताकि फेस में वियर्ड से स्ट्रेचिंग ना हो बाद में। Sometimes it will just work, sometimes it won't work. So just delete the chunk that's not working and again redraw your edges. Right. I think I can go a bit more. इसको select करते हैं, आपके सामने है ये। Control E, extrude, और सामने यहाँ पे rotate, insert edge loop tool, rotate, target well. Up, let's come to the front view, try to manage. You can push them back now. वर्टेक्स सेलेक्ट करने में तकलीफ हो रहा है तो एज सेलेक्ट कर लो, सेम थिंग। जस्ट ट्राइंग टू फील द एरिया। ओके, डेफिनेटली यहाँ पे एक चाहिए स्प्लिट, select the vertex, I'll go to my target well, and target well। तो ये कनेक्शन हमारा यहाँ पे बन गया। अगेन वन मोर target well, spread it out। Okay, I'm just trying to evenly space them। I think we have to split this one, यहाँ पे काफी बड़े बड़े चंक्स है। Now, okay, now let's try कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। I'll select the part, Control E, extrude them। Okay, extrude them देखते हैं, कनेक्टिविटी इसके साथ कर दूंगा। And here this vertex can go with this one,
Okay. So we need more edge loops over here. I'll go to my insert edge loop tool. एक यहाँ पे insert कर देता हूँ. Okay, this. Actually, I'll get rid of this one first. Then I'll insert my edge loop. I thought उसको डिलीट करने से शायद से एज फ्लो पहले से बेटर देगा, बट डिड नॉट वर्क. तो डिलीट करने का कोई बेनिफिट मुझे मिला नहीं है. What I see. Sometimes Maya really works in your favor, sometimes it does not. So you have to learn how to make Maya work for you. So you just have to try different ways. Okay, there's 3. यहाँ पे कुछ weird सा कुछ हो रहा है. See? So that means हमें यहाँ पे ये दोनों फेस को डिलीट कर देना चाहिए and just rebuild the faces. Y enter and now press 3. देखो अब ठीक है. There is no weird pinching effect happening. जहाँ पे भी ऐसा pinching effect होगा ना weird सा, just delete the faces and append them again. ठीक है. Okay, we are just filling in the space. ये और भी देखते हैं कहाँ से किस तरीके से जाएगा. डेफिनेटली यहाँ पे एक मुझे चाहिए होगा. तो I'll just यहाँ पे insert edge loop tool एक insert कर देते हैं and insert करते हैं. यहाँ पे जाकर थोड़ा सा फेस का जो भी स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं. Okay. I'll try extruding them. Control E. एक्सट्रूड करते इसको बाहर. थोड़ा स्ट्रेटन कर देता हूँ. यहाँ पे इसको पीछे लेके आते हैं. स्केल करते हैं. ट्राई मैच करने का. इसके साथ मैच करने की कोशिश करते हैं इसको. ओके, बहुत दूर चला गया. पहले सामने वाले के साथ करते हैं. यहाँ पे this edge flow will help you in achieving the wrinkle which we have while smiling or laughing. तो ये एज फ्लो हमें यहाँ पे चाहिए जहाँ पे वो पिंचिंग इफेक्ट क्रिएट होता है जब हम स्माइल करते हैं. ये हाँ सी यहाँ पे अभी मुझे इधर भी जाना पड़ेगा, इधर भी जाना पड़ेगा, राइट. इसको प्रॉपर अपने जगह में फिट करने के लिए. व्हाट आई कैन डू इज आई कैन गो टू माय ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट टूल जो मुझे डायरेक्टली उसी एक्सिस में मूव करने में हेल्प करेगा. ओके, प्रेस 3 एंड चेक इट आउट. या स्मूथ. ठीक है. Next I can just append them together and try appending them. Append the two polygons. Okay. Sir, how differently did it help you? क्या Transform component, like उसने ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट क्या टूल डिफरेंट था? क्या डिफरेंस था. ओके, तो लेट्स से मुझे इसको एग्जैक्टली इसी एक्सिस में पीछे लेके जाना है, बट हमारे पास ऐसा कोई एक्सिस नहीं है. सी, पहले मैं एक्स में मूव करूंगा, देन मैं जी में मूव करूंगा ताकि वहां पे पहुंच सकूं. नथिंग रॉन्ग विद दैट. बट अगर मैं इसको ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट टूल में चला जाता हूँ, आई हैव दिस लोकल एक्सिस. इस एक्सिस में मुझे मूव करना है डायरेक्टली. पता चला? Okay. हाँ. So it's like in betweens of x, y, and y side or any. हाँ, समझ Okay. सकते हो उस तरीके से. हाँ, समझ सकते हो वैसे भी. Try to spread them out.
अगर मर्ज करने से चले ये जगह तो मैं मर्ज कर दूंगा इसको। This is not necessary then. You have to try. क्योंकि यहाँ पे काफी सारा एजेस इधर आ रहा है, तो मुझे यहाँ पे इतने सारे इंसर्ट नहीं करना। एक और तो इंसर्ट करूंगा मैं, बट इतना ज्यादा नहीं करना मुझे। लेट्स ट्राई, देखते हैं। पहले इसको मैं स्प्लिट कर देता हूँ, दोनों को सिलेक्ट किया एंड बेवल। बेवल से बेटर है, आई विल जस्ट स्प्लिट इट माय सेल्फ। एक यहाँ पे रखता हूँ एंड एक यहाँ पे रखता हूँ, सेंटर वाले को उड़ा देते हैं सीधा रखेंगे। सेलेक्ट दें, कंट्रोल ई, इसके नीचे लेके आते हैं। Try to make things okay. Putting vertices and merge them. Okay. Again, let me just control B. Move. Vertex, merge vertex. I can merge this with this one. I can merge this with this one. यहाँ पे ऑलरेडी इसका कुछ करना पड़ेगा। We have to think about this, क्योंकि हमारे पास 1 2 3 4 5 साइड है यहाँ पे, ठीक है। So first let's just delete this, merge vertices, G, merge vertices, okay. जितना पॉसिबल है मेंटेन करते रहो, तो फेशियल कर्वेचर है अपना। नाउ आई डोंट वांट कि यहाँ पे तीनों के तीनों नीचे आए, मे बी एक आएगा तो चलेगा, या तो मैक्सिमम 2, और तीनों के तीनों नीचे आएगा तो यहाँ पे बहुत ज्यादा हमारे पास एजेस बन जाएंगे, जो कि बाद में जब हम नेक्स्ट के साथ कनेक्ट करेंगे वहाँ पे बहुत ज्यादा एजेस हो जाएगा। तो आई जस्ट स्प्लिट इट, मैं यहाँ पे स्प्लिट कर देता हूँ एंड इसको कोशिश करते हैं इसको इधर से घुमा के लेके जाने का, देखते हैं। आई जस्ट पहले तो हम इसमें स्पेस क्रिएट करते हैं ताकि यहाँ पे मैं वो बना सकूँ। Okay, I'll just go to my insert edge loop tool, यहाँ पे इंसर्ट करते हैं एंड आई विल गो टू माय append to polygon tool, यहाँ से यहाँ पे append करते हैं। आई नो इट्स अ ट्रायंगल, इट्स लेफ्ट फॉर द टाइम। इसको लूप को मैं घुमा के वापस से यहीं पे लेके आ रहा हूँ ताकि वो नीचे कंटिन्यू ना हो। ठीक है, लेट्स ट्राई अगेन। यहाँ से अगर मैं यहाँ पे करूँ, यू आर बैक टू क्वाड, ओके, एंड अगर यहाँ से यहाँ पे करूँ, एंटर, एंड यहाँ से यहाँ पे, ओके, नॉट बैड। तो बाहर निकल गया। सर हम उन्हें पहले ऐड करके और फिर एजेस डिलीट करते तो will that work? You can try. There are lots of options available out there. अब इसको मैं थोड़ा स्पिन करके देख लेता हूँ, अगर किसी एंगल से बेटर काम करे तो कैसा नीचे आ रहा है तो ओके, बट देन मेरे पास ये बच जाएगा। इसका क्या करूँ? क्या इधर से सीधा चला जाएगा अगर, तो इसका क्या करना है? ये और भी इधर क्या करेगा ना, कंट्रोल जी, नॉट हैप्पी विथ दैट। इससे बेटर तो मैं ऐसे ही रख दूंगा।
ओके, और इसको मूव करें तो व्हाट इफ अगर ऐसा करूँ तो ओके, अच्छा, और यहाँ पे भी यहाँ पे भी इसको सबसे हमें डील करना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्म कंपनी के लिए इधर लेके जाऊँ, बस इधर नहीं लेके जाना तो you can easily insert one edge over here and get rid of this. कोई प्रॉब्लम नहीं है। Let's try different option और हो सके तो also यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये स्ट्रेचिंग हो रहा है, स्ट्रेचिंग भी मुझे कम करना है यहाँ पे। पार्ट को यहाँ पे लेते हैं सामने, स्ट्रेचिंग कम हो जाए। इस लुक को अगर यहाँ से फ्लो कर दूँ, फिलहाल के लिए इसको डिलीट करते हैं। मल्टीकट टूल कंटिन्यू, ताकि यहाँ पे इतना बड़ा जो स्ट्रेचिंग जो है इसको एलिमिनेट कर सकूँ। एंड मैं इसको एकदम नीचे तक नहीं कंटिन्यू करूँगा बिकॉज हमारे माउस के सेंटर में यहाँ पे कट होगा, राइट। मैं कट लगा ही देता हूँ। कंफ्यूजन center. I'll delete the center spaces. यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट, एंड यहाँ पे वो कहाँ से रह गया, weird, and it's not getting deleted. चेक क्या हुआ था यहाँ पे, इसमें डबल क्रिएट हुआ है। Let's see.